السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں نازیہ خان۔ کھیلوں کی خبروں میں ہوں آپ کے ساتھ محمد انیس، اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبدالقدیر۔ بلیٹن کا آغاز ہیڈ لائن سے۔ وزیر اعظم کا خیبر پختونخوا کے سیلاب متاثرین کے لیے وفاقی کابینہ کی 1 ماہ کی تنخواہ عطیہ کرنے کا اعلان۔ متاثرین کی مدد کے لیے وفاقی اداروں کو مزید متحرک ہونے کی ہدایت۔ یہ سیاست کا نہیں، لوگوں کے دکھوں کا مداوع کرنے کا وقت ہے۔ مشکل کی گھڑی میں وفاقی اور صوبائی حکومت کی کوئی تقسیم نہیں۔ مصیبت زدہ بہن بھائیوں کی مدد ہماری قومی ذمہ داری ہے۔ متاثرہ افراد کی امداد اور بحالی یقینی بنائیں گے وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ وزیر اعظم کی وزارت صحت کو ڈاکٹرز کی ٹیمیں خیبر پختونخوا بھیجنے اور میڈیکل کیمپس قائم کرنے کی ہدایت۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو بھی متاثرین کی مدد کے لیے متحرک کرنے کا حکم۔ وزرائے خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان خود جائیں۔ متاثرہ علاقوں میں بجلی، پانی، سڑکوں اور دیگر سہولتوں کی بحالی کی نگرانی کریں۔ این ڈی ایم میں متاثرین میں امدادی اشیاء کی تقسیم کا عمل تیز کریں، وزیر اعظم کی ہدایت۔ سیلاب متاثرین کی مدد قومی فریضہ، وفاق کی حکومت اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر این ڈی ایم میں صوبائی حکومتوں سے مسلسل رابطے میں ہے۔ متاثرین کو امدادی سامان کی فراہمی اور ریلیف سرگرمیاں جاری۔ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے قومی سطح پر کوششیں کی جا رہی ہیں۔ پاک فوج اور فلاحی ادارے بھی متاثرہ علاقوں میں سرگرم عمل۔ این ڈی ایم کے ذریعے سڑکوں، پانی اور بجلی کے نظام کی بحالی کو فوری یقینی بنایا جا رہا ہے۔ تمام ادارے یکجا ہو کر متاثرین کی بحالی اور انفراسٹرکچر کی مرمت پر کام کر رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطاءاللہ تارڑ کی وفاقی وزیر مصدق ملک اور چیئرمین این ڈی ایم کے ہمراہ میڈیا بریفنگ۔ وفاقی وزیر امیر مقام نے وزیر اعظم ریلیف پیکج ڈپٹی کمشنر بنیر کے حوالے کیا۔ امدادی سامان میں 200 فیملی ٹینٹ، 1420 کمبل، 7 KV کے 5 جنریٹرز، 5 ڈی واٹرنگ کیمپس، 46 کلو گرام کے 100 خوراک کے پیکٹس اور 500 کلو گرام ادویات شامل۔ متاثرین کی بحالی تک امدادی سامان کی ترسیل جاری رہے گی۔ بنیر، شانگلہ، سوات، باجوڑ اور مانسہرہ میں سیلاب سے نقصانات ہوئے۔ مشکل کی گھڑی میں وفاقی حکومت متاثرین کے ساتھ ہے۔ وزیر اعظم نے وفاقی محکموں کو سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد کی ہدایت کی ہے۔ متاثرہ علاقوں میں سڑکوں اور بجلی کی بحالی پر دن رات کام جاری ہے۔ سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر امیر مقام کی بنیر میں میڈیا سے گفتگو۔ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع مسلسل شدید بارشوں کی زد میں۔ صوابی میں بادل پھٹنے سے تباہی، 11 افراد جاں بحق۔ پانی کے تیز بہاؤ سے متعدد علاقے متاثر، 12 مکانات تباہ۔ صوابی کی تحصیلوں رزر، چھوٹا لاہور اور ٹوپی میں سیلابی پانی گھروں میں داخل۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ۔ منگورہ کے بالائی علاقوں میں بھی مسلسل بارشوں کے بعد ندی نالوں میں طغیانی۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں اور سیلاب سے اب تک 325 افراد جاں بحق، 156 زخمی۔ سیلاب سے زیادہ متاثرہ ضلع بنیر میں 217 افراد جاں بحق۔ مجموعی طور پر 336 گھروں کو نقصان پہنچا، 106 گھر مکمل منہدم۔ بارشوں کا حالیہ سلسلہ 22 اگست تک وقفے سے جاری رہنے کا امکان۔ متاثرہ اضلاع کو نواسی ٹرکوں پر مشتمل امدادی سامان کی فراہمی۔ امدادی فنڈ کی مد میں 80 کروڑ روپے جاری۔ ضلع بنیر کی انتظامیہ کو بھی 50 کروڑ روپے کے فنڈز جاری۔ پی ڈی ایم کی رپورٹ۔ پاک فوج کی بنیر، سوات، شانگلہ اور باجوڑ میں امدادی اور بحال کی کارروائیاں جاری۔ شدید بارش کے باوجود ہیلی کاپٹرز کے ذریعے سیلاب زدگان کو راشن اور امدادی سامان کی فراہمی۔ متاثرہ علاقوں سے لوگوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی۔ کور آف انجینئرز راستے کھولنے اور ملبہ ہٹانے میں مصروف۔ بنیر، شانگلہ اور سوات میں سیلاب کے دوران لاپتہ ہونے والے افراد کی تلاش جاری۔ پاک فوج کے جوان ٹوٹے ہوئے پلوں اور بند راستوں کو کھولنے میں مصروف۔ موسم کی خرابی کے باوجود پاک فوج کا ہیلی کاپٹر ریسکیو مشن۔ متاثرہ علاقوں میں میڈیکل کیمپ، مفت ادویات کی تقسیم جاری۔ عوام کا امدادی کوششوں پر اطمینان کا اظہار۔ پاک فوج کا شکریہ ادا کیا۔
पाक फजाइया की खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ। इमदादी सामान कराची से पेशावर पहुँचाया। सामान मुतासरीन में NDMA के जरिए तकसीम किया जाएगा। पाक फजाइया, बुनेर और शांगला के मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान की बरवक्त तरसील यकीनी बना रही है। कुदरती आफात में जब भी कौम ने पुकारा, पाक फजाइया ने लब्बैक कहा। ISPR। फौजी हेलीकॉप्टर हमारे इलाके में उतरा और राशन बांटा गया तो हर तरफ पाक फौज जिंदाबाद के नारा गूंजने लगे। आर्मी चीफ की हुक्म पर पाक फौज के जवानों ने एक दिन की तनख्वाह मुतासिरीन के लिए वक़्फ़ कर दी है, जो जज्बे इसार की एक मिसाल है। मुश्किल वक्त में सिर्फ और सिर्फ पाक फौज की आवाम की शाना बशाना खड़ी है। सबसे पहले पाक फौज के जवानों ने आकर हमारे साथ मदद की। सैलाब से मुतासरा इलाकों बाजोड़, सवाद और मालाकंड डिवीजन में पाक फौज की खिदमात पर अवाम का खिराज तहसीन। फौज के जवानों ने मुश्किल वक्त में हमारी मदद की, दिन रात की परवाह किए बगैर लोगों को रेस्क्यू किया। सैलाब मुतासरीन के तासुरात। पाकिस्तान को G20 मईशतों में शामिल करना हदफ है। हमसायों से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। जो भी पाकिस्तान को मैली आंख से देखेगा, भरपूर जवाब देंगे। लैंड रिकॉर्ड सर्विसेज की फ्राहमी और वन विंडो पासपोर्ट प्रोसेसिंग सिस्टम से पाकिस्तानियों को सहूलत मिलेगी। मंसूबे वज़ीर आज़म के अप्रैल में ओवरसीज पाकिस्तानीज कन्वेंशन में किए गए वादे की तकमील है। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार। मुल्क की मईशत दुरुस्त सम्त में गामजन। PTI दौर में दोस्त मुल्कों से ताल्लुकात खराब किया गए। मुल्क की तरक्की में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का अहम किरदार है। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा, हुकूमत की पॉलिसीज पर एतमाद का मजहर। पंजाब में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बना रहे हैं। सूबे में जल्द जापान जैसी तरक्की नजर आएगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों के आराजी मामलात हल किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जापान के शहर योकोहामा में पाकिस्तानियों से खिताब। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और तारीख साज दिन। इंडेक्स बुलंद तरीन सतह 1,48,395 पॉइंट्स पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स में 1704 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,48,196 की बुलंद तरीन सतह पर बंद। 39 अरब रुपए से जायद मालियत के शेयर्स का कारोबार। कारोबारी हालात बेहतर, मुआशी दबाव में कमी, बैंकारी शोबे की तरक्की के लिए साजगार माहौल। पाकिस्तान का कर्ज मंजरनामा मजबूत हुआ है। हकीकी GDP में 2027 तक 3.5% इजाफे की तवक्को। इस्लाहात जारी रहीं तो बैंकों को निजी शोबे की फाइनेंसिंग बढ़ाने और अवामी शोबे की फाइनेंसिंग पर इन्हिसार कम करने में मदद देगी। फिच रेटिंग्स की रिपोर्ट। हुकूमत का काम कारोबार नहीं, साजगार माहौल फराहम करना है। मईशत को आगे बढ़ाने और पायदार तरक्की के लिए निजी शोबे का किरदार अहम है। हमें मुस्तकिल और पायदार तरक्की की तरफ बढ़ना है। जॉब फेयर्स जैसे इकदाम नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करने में मददगार होंगे। नौजवान मेहनत को अपना शुआर बनाएं, अपनी सलाहियतों को बेहतरीन अंदाज में बरूए कार लाएं। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब। रियासत के साथ गद्दारी पर शर्मिंदा हूं, बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के लेक्चरर का एतराफी बयान। सिक्योरिटी फोर्सेस ने यौम आज़ादी पर तबाही के बड़े मंसूबे को नाकाम बनाया। CTD समेत सिक्योरिटी फोर्सेस बलोचिस्तान के अमन के लिए भरपूर कोशिशें कर रही हैं। साजिश के तहत दहशत गर्दी को पसमानदगी और महरूमी से जोड़ा जाता है। गुमराह अनासर को कानून के करहरे में लाया जाएगा। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की कौमी धारे में शामिल होने वाले लेक्चरर के साथ कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पंजाब में मुमकिना तूफानी बारिशें। वज़ीर आला मरियम नवाज की PDMA समेत तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। क्लाउड बर्स्ट और मूसलाधार बारिशें कुदरती आफत हैं, तमाम इदारे मुतहर्रिक रहें। किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज। बालाई पंजाब में क्लाउड बर्स्ट, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग की वार्निंग। पंजाब भर में कायम स्मार्ट सेफ सिटीज में फ्लड मॉनिटरिंग के लिए खुसूसी टीमें तश्कील। मौसमी तब्दीली का मसला संगीन नौयत इख्तियार कर चुका। पंजाब में मानसून के तीसरे स्पेल ने ज्यादा नुकसान किया। सूबे में मजमूई तौर पर 164 अफराद जाम बहक हुए। डायरेक्टर जनरल PDMA और कमिश्नर रावलपिंडी की मीडिया से गुफ्तगू।
पाक फौज ने स्कर्दू को मुल्क के दीगर इलाकों से मिलाने वाली मरकजी सड़क की मुरम्मत का काम शुरू कर दिया। खराब मौसम और पानी के शदीद बहाव के बायस इमदादी और बहाली के काम में मुश्किलात। पाक फौज के जवान जांफिशानी और अज़्म के साथ सड़क की मुरम्मत में मसरूफ़ अमल। सैलाब से स्कर्दू को दीगर इलाकों से मिलाने वाली सड़क अस्तक के मुकाम पर पानी में बह गई थी। आज़ाद कश्मीर में तूफानी बारिशें, मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक होने वालों की तादाद 16 हो गई। लैंड स्लाइडिंग और बरसाती नालों की जद में आकर 79 घर मुकम्मल तबाह। दर्जनों राब्ता पुल और सड़कें भी सैलाबी रैलों की नजर। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए क़वानीन मौजूद हैं। गैरत के नाम पर ख़वातीन के कत्ल की हौसला शिकनी करना है। फ़र्द वाहिद को किसी का कत्ल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ख़वातीन पर तशद्दुद को रोकने के हवाले से मुख्तलिफ मसाइल का सामना है। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगाही की ज़रूरत है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में इज़हार ख़याल। पंजाब से सेनेट की जनरल नशिस्त पर राना सनाउल्लाह को टिकट जारी। मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ ने राना सनाउल्लाह को टिकट जारी किया। इजाज चौधरी की नाअहली से सेनेट की खाली होने वाली नशिस्त पर इंतखाब 9 सितंबर को होगा। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयां। बांडीपुरा से 2 कश्मीरी नौजवान गिरफ्तार। काले कानून के तहत मुकदमा दर्ज। कश्मीरी मुसलमान बीजेपी हुकूमत की हिंदुत्वा पॉलिसीज का बुनियादी हदफ हैं। आलमी बिरादरी मकबूजा इलाके में नौ आबादियाती मंसूबे पर भारत का मुहासिबा करे। सिविल सोसाइटी के अरकान का मुतालबा। गजा में काबिज इसराइली फौज के फिजाई और जमीनी हमले, मजीद 60 फलस्तीनी शहीद, 300 से ज्यादा जख्मी। शोहदा में बच्चों और खवातीन समेत इमदाद के मुंतजिर 14 फलस्तीनी भी शामिल। भूख से 2 बच्चों समेत 5 अफराद जान की बाजी हार गए। 22 माह से जारी इसराइली जारहियत में शोहदा की मजमूई तादाद 62,000 तक पहुंच गई। गजा में 5 लाख से ज्यादा अफराद कहत का शिकार। अमेरिका में जॉन्स क्रैक ओपन स्क्वॉश टूर्नामेंट, पाकिस्तान के अशब इरफान ने टाइटल जीत लिया। फाइनल में मलेशिया के नेथन केवे को 8-11, 11-2, 11-2 और 11-6 से शिकस्त। अशब इरफान का रवां साल का ये तीसरा PSA टाइटल है। चीन में 3 रोजा रोबोट ओलंपिक्स इख्तिताम पजीर। मुकाबलों में 16 मुल्कों की 280 टीम्स की शिरकत। रोबोट्स ने फुटबॉल, एथलेटिक्स और टेबल टेनिस समेत मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया। मखसूस चैलेंजेस भी मुकम्मल किए। बरतानिया में सालाना लॉन मूवर रेसिंग का इनेकाद। 12 घंटे के तवील इवेंट में 40 टीमों की शिरकत। रेसर्स ने 1.4 किलोमीटर के कोर्स के 420 चक्कर मुकम्मल किए। बुल्सआई टीम 2023 के बाद दोबारा टाइटल जीतने में कामयाब। और सिंसिनाटी ओपन टेनिस टूर्नामेंट, पोलैंड की गैश्वेटिक और इटली की जैस्मिन पॉलिनी फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल्स में काजाकिस्तान की एलेना रबकीना और रूस की वर्वेनिका कुदरमतोवा को शिकस्त। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, इस्लाम की तारीख उलुल अज़मी, हौसले और मुस्तकिल मिजाजी की मिसालों से भरी पड़ी है। बस मुश्किलों, रुकावटों और मुसीबतों के बावजूद आगे बढ़ते जाओ।
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन के लिए वफाकी काबीना की 1 माह की तनख्वाह अतिया करने का ऐलान किया है। इस्लामाबाद में बारिशों और सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों से मुतल्लिक इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि ये सियासत का नहीं, मुतासरीन के साथ यकजहती और उनके दुखों का मदावा करने का वक्त है। वज़ीर आज़म पैकेज के तहत मुतासरा इलाकों में इमदादी रकूम फराहम करेंगे। तफसील बता रहे हैं उमर फारूक। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में इस्लामाबाद में अहम इजलास हुआ, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों और सैलाब से होने वाले नुकसानात और रिलीफ सरगर्मियों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने मुतासरा इलाकों में इमदाद की फराहमी और बहाली के लिए जारी सरगर्मियों के बारे में आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मुतासरा इलाकों में पानी, बिजली, सड़कों और दीगर सहूलतों की बहाली के अमल की निगरानी वफाकी वुज़रा करेंगे। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हिदायत की कि तमाम मुतलका वुज़रा खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान जाएं। आखिरी शख्स तक इमदाद की फराहमी और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली तक वफाकी वुज़रा इलाके में मौजूद रहेंगे। NHA शाहराहों की बहाली में सूबाई या कौमी सड़कों की तखसीस न करे। इमदाद के लिए रास्ते खोलना पहली तरजीह होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि NDMA फौरी तौर पर नुकसानात से मुताल्लिक हतमी जायजा पेश करे। उन्होंने वज़ारत खजाना को हिदायत की कि NDMA को जरूरी वसाइल की फराहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वज़ारत सेहत मुतासरा इलाकों में तिब्बी टीमों और अद्वियात के साथ मेडिकल कैंप्स के इनेकाद के लिए इकदामात करे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को भी मुतासरीन की मदद के लिए मुतहर्रिक किया जाए। इजलास में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों और सैलाब से जाँ बहक होने वालों के दर्जात की बुलंदी और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की गई। वफाकी वुज़रा अताउल्लाह तारड़ और डॉक्टर मुसद्दक मलिक के हमरा मीडिया ब्रीफिंग में NDMA के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने बताया कि मुतासरा इलाकों में जामे लाया अमल के तहत बुनियादी ढांचे की बहाली पर काम तेजी से जारी है। 670 के करीब जानी नुकसान हो चुका है। 1000 के करीब वो लोग हैं जो मुख्तलिफ इंजरीज से गुजरे। NDMA इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन, आर्मी के बाकी रिसोर्सेज के साथ मिलकर हमारा इस वक्त सबसे पहली तरजीह लोगों को बचाने और उनको रिलीफ कैंप्स में पहुंचाने की है। इस वक्त तकरीबन कमोबेश 450 के करीब जगहों पर मुख्तलिफ रेस्पॉन्स रिलीफ कैंप्स एक्टिवेट कर दिए गए हैं, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म की हदायत के मुताबिक मेडिकल सर्विसेज, एमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज, ट्रीटमेंट्स दे आर इन प्लेस। 2 मानसून के स्पेल्स और आ रहे हैं, जो 23 अगस्त से एंड ऑफ अगस्त है, और दूसरा पहले 10 दिन सितंबर के। ये ज़्यादा क्रिटिकल है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर NDMA सूबाई हुकूमतों के साथ राब्ते में है। पेशगी आगाही के निज़ाम के तहत मालूमात फराहम की जा रही हैं। अब एक जो अर्जेंट सूरत हाल है उसको डील करने के लिए एक नेशनल एफर्ट सामने आया है, और ना सिर्फ NDMA वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर राब्ते में हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के साथ, बल्कि इमदादी सामान की तरसील भी की जा रही है, और रिलीफ और रेस्क्यू एफर्ट्स के अंदर भी भरपूर मुआवनत फराहम की जा रही है। मौसमियाती तब्दीली के वफाकी वजीर डॉक्टर मुसद्दक मलिक ने कहा कि मुतासरा इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए सूबों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। चैलेंजेस से निपटने के लिए मौसमियाती तब्दीली से मुताबिकत रखने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर वक्त की जरूरत है। कोई तफरीक नहीं की जाएगी कि वफाक क्या है और सूबा क्या है। हम सब एक हैं। इस वक्त मुल्क में एक आफत आई हुई है और हम सब मिल के ये लड़ाई लड़ेंगे। पहाड़ों से उतरने वाली वो तूफानी कुव्वत है जो वो अपने साथ पानी लेकर आती है, तो उनके किनारे पे जो बस्तियां आबाद हैं, ये हमारे बच्चों की बस्तियां हैं, और इनको वहाँ से हटाया जाए, इनको सेफ जगहों पे ले जाया जाए, मुल्क में जोनिंग की जाए। सूबाई हुकूमतों से भी दरख्वास्त होगी, हम हाजिर हैं, हम आपके साथ हैं, हम एक हैं। वफाकी वुज़रा ने कहा कि नागहानी आफत से पैदा होने वाली सूरत हाल पर काबू पाने के लिए हमें मुश्तरका कोशिशें और इकदामात करने हैं। इस सिलसिले में वफाकी हुकूमत कौमी जिम्मेदारी के तहत अपना किरदार अदा कर रही है। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब और बारिशों से मुतासरा अजला बुनेर, बाजोड़, सवात और शांगला में रेस्क्यू और रिलीफ की कार्रवाइयाँ जारी हैं। सूबे के बेशतर अजला में वक्फे से तेज बारिशों का सिलसिला भी जारी है, जिससे इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात पेश आ रही हैं। बिशावर से साजिद अख्तर की रिपोर्ट देखिए। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा अजला में इमदादी सरगर्मियों का सिलसिला जारी है। वफाकी हुकूमत की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म फ्लड रिलीफ पैकेज आज बुनीर की ज़िले इंतजामिया के हवाले किया गया। वफाकी वजीर बराए उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मकाम ने बुनीर में इमदादी सामान डिप्टी कमिश्नर के हवाले किया। इमदादी सामान में 200 फैमिली टेंट, 1420 कंबल, 7 kV के 5 जनरेटर्स, 5 डी वाटरिंग पंप्स और मुख्तलिफ अशिया पर मुश्तमिल खुराक की पैकेजेस और अद्वियात शामिल हैं।
इस मौके पर गुफ्तगू में वफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा कि बुनेर में बहुत बड़े पैमाने पर माली और जानी नुकसानात हुए हैं। मुश्किल की इस घड़ी में वफाकी हुकूमत मुतासिरीन के साथ खड़ी है और अपने तमाम वसाइल मुतासरा इलाकों के अवाम के लिए इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि NHA के तहत आने वाले तमाम शाहराएं क्लियर कर दी गई हैं। वज़ीर आज़म ने तमाम वफाकी महकमों को हिदायत की है कि सैलाब मुतासिरीन की हर मुमकिन मदद को यकीनी बनाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर मुतासरा अजला को 89 ट्रकों पर मुश्तमिल इमदादी सामान फराहम कर दिया गया है। इमदादी सामान में टेंट्स, मैट्रेस, बिस्तरे, किचन सेट्स, तरपाल, चिटाइयाँ, मच्छरदानियाँ, जनरेटर्स और दीगर रोज़मर्रा ज़िंदगी की अशिया शामिल हैं। सूबाई हुकूमत की हिदायत पर मुतासरा अजला को 80 करोड़ रुपए के फंड जारी कर दिए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सैलाब मुतासिरीन को नुकसानात के मुआवज़ों की ऑनलाइन अदायगी के लिए खुसूसी ऐप का इजरा किया है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने डिजिटल पेमेंट सिस्टम का बाज़ाब्ता इजरा किया। ऐप के जरिए सैलाब मुतासिरीन को उनके तबाहशुदा अमलाक के मुआवजे बराह रास्त और ऑनलाइन अदा किए जाएंगे। ऑनलाइन सिस्टम के जरिए मुतासिरीन अपने अमलाक के नुकसानात की तफसीलात खुद भी अपलोड करके मुआवजा क्लेम कर सकेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने अपनी 1 महीने की तनख्वाह सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए दी है। सूबाई काबीना के अरकान की 15 दिनों की जबकि अरकान सूबाई असम्बली की 7 दिनों की तनख्वाहें मुतासिरीन की इमदाद के लिए देने का फैसला किया गया है। इसके अलावा स्केल 17 और ऊपर के सूबाई हुकूमत के मुलाजिमीन के 2 दिनों जबकि स्केल 1 से 16 तक के मुलाजिमीनों की 1 दिन की तनख्वाह सैलाब ज़दगान के लिए दी जाएगी। सिंध हुकूमत की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासिरीन के लिए 15 ट्रकों पर मुश्तमिल इमदादी सामान पेशावर में अंजुमन हिलाल अहमर के हवाले किया गया। इस मौके पर सिंध के सूबाई वजीर बराए बहाली मखदूम महबूब जमान ने कहा कि इमदादी सामान में 100 वाटर फिल्ट्रेशन यूनिट्स और खुराकी अशिया शामिल हैं। उन्होंने बताया कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की खुसूसी हिदायत पर खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा अफराद के लिए इमदादी सामान फराहम किया है। सिंध की हुकूमत और अवाम मुश्किल की इस घड़ी में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के साथ है। पेशावर में मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी बराए मवासलात सुहेल अफरीदी ने बताया कि सैलाब और बारिशों से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू इमदादी कार्रवाइयों में रुकावटों को दूर करने के लिए सड़कें साफ कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि मुतासरा इलाकों में 200 के करीब मशीनरियाँ रास्तों की सफाई में मसरूफ़ हैं। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ बारिशों का सिलसिला जारी है। आज पेशावर समेत सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश हुई जिससे सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई। सवाबी के इलाके गदून में क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में सैलाबी रेला आया और लैंडस्लाइडिंग हुई जिससे मुतअद्दिद घर और गाड़ियां मलबे तले दब गई। PDMA के मुताबिक लैंडस्लाइडिंग से खवातीन और बच्चों समेत 11 अफराद जाबाहक हुए। लैंडस्लाइडिंग से कई पुल भी तबाह हुए जिससे मवासिलात का निज़ाम मुतासिर हुआ। PDMA ने बारिशों और फ्लश फ्लड के बायस अब तक होने वाली जानी और माली नुकसानात की तफसील जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक जाबाहक होने वाले अफराद की तादाद 341 तक पहुँच गई है जबकि 200 के करीब अफराद जख्मी हैं। PDMA ने 21 अगस्त तक सूबे में मजीद बारिशों की पेशनगोई की है। तेज़ और मुसलसल बारिशों के बायस खैबर पख्तूनख्वा के ग्लेशियाई इलाकों में ग्लेशियाई झीलें फटने के वाक़यात का भी खतरा बढ़ गया है। साजिद अख्तर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मुकाम से चेयरमैन नेशनल हाईवे अथॉरिटी शहरियार सुल्तान ने मुलाकात की जिसमें हालिया तबाहकुन सैलाब से मुतासरा शांगला, बुनेर, सवात और गिरदोनवाह के इलाकों में सड़कों और पुलों की बहाली के हंगामी इकदाम पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन NHA ने जारी बहाली के कामों से आगाह किया। इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा कि वफाकी हुकूमत तमाम सैलाब ज़दा इलाकों में बहाली के कामों पर मुतहर्रिक अंदाज में काम कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से मुतासरा अवाम की मदद के लिए पाक फौज अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली समेत राशन और अद्वियात की फ्राहमी जारी है। तफसील मोहम्मद उस्मान से। बारिशों से मुतासरा खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बुनेर, सवात, शांगला और बाजोड़ में पाक फौज का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन चौथे रोज भी जारी है। मौसम की खराबी के बावजूद पाक फौज के हेलीकॉप्टर रेस्क्यू मिशन में मसरूफ हैं और मुतासरा इलाकों में राशन और जरूरी सामान पहुंचा रहे हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए सैलाबज़दा इलाकों से लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल भी किया जा रहा है। पाक फौज की कोर ऑफ इंजीनियर रास्तों को खोलने और मलबा हटाने के काम में सरगर्म है। अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम भी जख्मियों और लाशों की तलाश में मसरूफ है। पाक फौज के डॉक्टर्स ने मुतासरा इलाकों में मेडिकल कैंप्स कायम कर दिए
हैं जहां मुफ्त दवाएं फराहम की जा रही हैं। पाक फौज की जानिब से मुतासरा खानदानों तक एक रोजा राशन, बिस्तर और टेंट भी पहुंचाए जा रहे हैं। अवाम ने पाक फौज की इमदादी सरगर्मियों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि पाक फौज की बर वक्त इमदादी सरगर्मियों से इन्हें बड़ा सहारा मिला और वो इनकी काविशों पर शुक्रिया अदा करते हैं। पाक फज़ाइया बुनेर और शांगला के मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान की बर वक्त तरसील यकीनी बना रही है। ISPR के मुताबिक कुदरती आफात में जब भी कौम ने पुकारा, पाक फज़ाइया ने लब्बैक कहा। स्वाबी की तहसील टोपी के मुतासरा इलाके डलोराई, सरकोई और बादा में पाक फौज और फ्रंटियर कोर नॉर्थ की जानिब से हंगामी बुनियादों पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। जब पाक फौजी हेलीकॉप्टर हमारे इलाके में उतरा और राशन बंटा गया तो हर तरफ पाक फौज जिंदाबाद के नारा गूंजने लगी। ये अवाम एतमाद और मोहब्बत का मकबूल सबूत। आर्मी चीफ की हुक्म पर पाक फौज के जवानों ने एक दिन की तनख्वाह मुतासिरीन के लिए वक़्फ़ कर दी है, जो जज्बे इसार की एक मिसाल है। मुश्किल वक्त में सिर्फ और सिर्फ पाक फौज की आवाम की शाना बशाना खड़ी है। अभी जो हालिया सैलाब आए थे उनमें हमारे घर बिखर गए थे, सारे मलमेट हो गए थे। उस वक्त सबसे पहले पाक फौज के जवानों ने आकर हमारे साथ मदद की। हालिया सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के दौरान गिलगित बल्तिस्तान का जमीनी रास्ता दूसरे इलाकों से मुनक़ता हो गया था। आर्मी चीफ की खुसूसी हदायत पर गिलगित बल्तिस्तान में पाक फौज की इंजीनियर्स शाहराहों की बहाली का काम कर रहे हैं। शाहराह कराक्रम जो लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद हो गई थी को डाइवर्जन बनाकर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। इस्लामाबाद से गिलगित बरास्ता, बाबूसर टॉप, शाहराह और देवसाई रोड भी आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। हुंजा रोड जो आगे अस्तौर और चीन तक जाती है वो भी आम ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी गई है। स्कर्दू को मुल्क के दूसरे इलाकों से मिलाने वाली मरकजी सड़क अस्तक और मुल्हिका रोड पर जदीद मशीनरी के जरिए सड़क की मुरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। पाक फौज इमदादी सरगर्मियों और जमीनी राब्ते की मुकम्मल बहाली के लिए दिन रात कोशां है। ये रिलीफ ऑपरेशन मुतासरा अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने और मुतासरा अफराद की जरूरियात पूरी करने तक जारी रहेगा। मोहम्मद उस्मान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज ने सूबे में मुमकिन तूफ़ानी बारिशों के पेश नज़र PDMA और रेस्क्यू इदारों समेत तमाम मुतल्लिका इदारों को तैयार रहने की हिदायत की है। वज़ीर आला ने किसी भी सैलाबी सूरत हाल से मुतासरा अफराद को बेहतरीन तिब्बी इमदाद देने के लिए सरकारी अस्पतालों और मराकज़ सेहत में तैनात डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को भी अलर्ट रहने की हिदायत की है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने तूफ़ानी बारिशों की सूरत में सड़कें खुली रखने के लिए बर वक्त इंतजामात की भी हिदायत की है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने नदी नालों में नहाने पर पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने और सैलाबी रहरों से मुतासरा इलाकों में आबादी के बर वक्त इनखला को यकीनी बनाने का भी हुक्म दिया। डायरेक्टर जनरल PDMA इरफान अली काठिया ने कहा है कि पंजाब में मानसून के तीसरे स्पेल ने ज्यादा नुकसान किया। सर्वे के बाद नुकसानात का इजाला किया जाएगा। रावलपिंडी में कमिश्नर रावलपिंडी आमिर खटक के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डायरेक्टर जनरल PDMA ने कहा कि इस वक्त पूरा मुल्क मानसून से मुतासिर है। पोटोहार रीजन में आइंदा 72 घंटों में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा है। उन्होंने कहा कि तरबेला और दरिया सिंध से मुल्हिका इलाके खाली करवा दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में मजमूई तौर पर 164 अफराद जाँ बहक हुए। अवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मार्के हक में अजीम कामयाबी हासिल की, जिससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत और वकार में इजाफा हुआ है। जापान के शहर योकोहामा में ओवरसीज पाकिस्तानियों से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने मुल्क की मईशत को दुरुस्त समत में गामजन कर दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं वसीम सज्जाद। योकोहामा में ओवरसीज पाकिस्तानियों से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने इक़्तिदार संभाला तो मुल्क के डिफॉल्ट की बातें हो रही थीं। मौजूदा क़यादत ने मुल्क को जामे हिकमत अमली के जरिए दिवालिया होने से बचाया। उन्होंने कहा कि हुकूमती इक़दामात की बदौलत महंगाई की शरह में नुमायां कमी आई, मुल्क से बिजली की लोड शेडिंग खत्म हुई और तरक्की के सफर का दोबारा आगाज हुआ। पंजाब में बहुत जल्द जापान जैसी तरक्की नजर आएगी। अभी चंद माह पहले की बात थी या चंद साल पहले की बात थी, यही खबर आती थी कि मुल्क खुदा न खास्ता आज डिफॉल्ट हुआ या कल डिफॉल्ट हुआ। पाकिस्तान को एक फेल्ड स्टेट खुदा न खास्ता एक नाकाम रियासत का नाम लोग देने लगे थे। पाकिस्तान के दोस्त मुल्क पाकिस्तान से नाराज हो रहे थे, लेकिन आप देखो कि चंद माह की मेहनत के बाद आज डिफॉल्ट की बात कौन कर रहा है? ये वही पाकिस्तान है जिसमें 38% पे महंगाई चली गई थी। आज पाकिस्तान में महंगाई जो है वो 3 या 4% पे। आज लोड शेडिंग नहीं है पाकिस्तान में, और वो दवाइयाँ जो गरीब लोगों को मिलना बंद हो गई थी। अस्पताल में उनको ये कहा जाता था कि तुम्हें फ्री दवाई नहीं मिल सकती, अब 90% 95% गरीब मरीजों को वो दवाइयाँ दोबारा मिल रही हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के इस दौर में आलमी बरादरी और पाकिस्तान के दरमियान एतमाद में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुकूमत की पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार है। जिन्होंने कहा था सड़कें बनाने से कौमें नहीं बनती, जरा उनसे पूछो एक अस्पताल का नाम बताओ जो बनाया, एक सड़क का नाम बता दो जो बनाए,
एक स्कूल का, यूनिवर्सिटी का नाम बता दो जो बनाए। अगर सड़कें बनाने से कौम नहीं बनती तो क्या गालियां देने से कौम बनती? कोई ऐसा भी वजीर आजम गुजरे हैं जो 12 बजे ऑफिस आते थे, 3 बजे घर वापस जाके गायब हो जाते थे। और यहाँ पे शहबाज शरीफ है, सुबह 7 बजे से काम शुरू करता है, रात 12 बजे तक काम करता है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि योकोहामा में पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद देखकर खुशी हुई है और उन्हें यूं महसूस हो रहा है कि जैसे वो लाहौर में जलसा कर रही हैं। इस मौके पर योकोहामा में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पाक फौज और हुकूमत के हक में नारे लगाए। वसीम सज्जाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने जापान के तिजारती, माशी और सकाफती मरकज़ योकोहामा शहर का दौरा किया। वज़ीर आला और उनके वफ़द को शहर के टाउन हॉल में अर्बन डेवलपमेंट पर ब्रीफिंग दी गई। योकोहामा और सूबे पंजाब में माहौलियात और शहरों को जदीद तरक्याती निज़ाम फराहम करने समेत मुख्तलिफ शोबों में सिटी टू सिटी ताउन पर इत्तेफाक किया गया। मीटिंग में पंजाब में सड़कों और इमारतों की तामीराती मयार जापान के बराबर लाने और रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी और योकोहामा में ताउन के मुख्तलिफ इम्कानात पर बातचीत की गई। इस मौके पर लाहौर इस्लामाबाद के दरमियान तेज़ रफ्तार ट्रेन चलाने और रेलवे अपग्रेडेशन में ताउन के इम्कानात का भी जायजा लिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने जदीद तरीन जापान चेयर लिफ्ट और एयर केबिन मंसूबों का भी जायजा लिया। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज ने जापान के शहर योकोहामा में सुर्ख पत्थरों से बनी तारीखी इमारत का दौरा किया। वज़ीर आला ने रेड ब्रिक वेयर हाउस के मुख्तलिफ हिस्से देखे। वो इमारत में कायम कम्युनिटी वेलफेयर सेंटर भी गई और वहाँ बच्चों को मुख्तलिफ हुनर सिखाने के अमल का जायजा लिया। बच्चों ने वज़ीर आला मरियम नवाज को कागज़ समेत मुख्तलिफ मवाद से बनी तख्लीकी अशिया दिखाई। वज़ीर आला ने बच्चों की तख्लीकी सलाहियतों को सराहा और उनकी हौसला अफजाई की। इस मौके पर वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि कम्युनिटी वेलफेयर के इस मॉडल को पंजाब में भी मुतारिफ करवाया गया है, जहाँ बच्चों को जदीद तालीम की फराहमी के साथ साथ हुनरमंद भी बनाया जा रहा है। इस मौके पर पंजाब की सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब भी वज़ीर आला के हमरा थीं। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार का कहना है कि पाकिस्तान को G20 मईशतों में शामिल करना हमारा हदफ है। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने कहा कि हमसायों से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। अप्रैल में अफगानिस्तान का दौरा किया, ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए। मोहम्मद इसाक डार ने कहा कि जो भी पाकिस्तान को मैली आंख से देखेगा भरपूर जवाब देंगे। हम अलर्ट हैं, हम नहीं चाहते, हम अमन पसंद मुल्क हैं, हम चाहते हैं कि प्यार मोहब्बत से तमाम हमसाया ममालिक के साथ रहा जाए। बाकी रहा इंडियन पॉलिटिकल रेटोरिक और उनके कुछ बयानात कि जी ये ट्रेलर था, ये पॉज है, ये सिर्फ टेम्परेरी है, वो हम उसमें बिलीव नहीं करते। हाँ, हमारी तरफ से अमन कायम रहेगा, लेकिन अगर कोई भी मैली आंख उठा के कुछ हमारी तरफ देखेगा या हमारे ऊपर कोई एक्शन लेगा तो उसका जवाब फिर इनका जवाब पत्थर से दिया जाए। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार ने लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में 2 अहम मंसूबों लैंड रिकॉर्ड सर्विसेज की फराहमी और 1 विंडो पासपोर्ट प्रोसेसिंग सिस्टम का इफ्तिताह किया। मंसूबों के इफ्तिताह से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए मौसर शफाफ तर्ज हुक्मरानी की जानिब एक कदम है। मुझे बहुत खुशी है कि पंजाब लैंड डिपार्टमेंट और यूके हाई कमीशन में डिजिटाइज सर्विस शुरू हो रही है। जो ज़मीनों के रिकॉर्ड के हवाले से जो सबसे ज़्यादा लिटिगेशन का बायस बनते हैं, प्रॉब्लम होती है डियास्पोरा को, उनकी जगह पे कई दफ़ा कुछ और इलीगल ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो डिजिटाइजेशन का ये मतलब होगा कि ये तमाम जो खराफात हैं ये रुक जाएंगी। नादरा ने और जो रेलेवेंट अथॉरिटीज़ है उन्होंने इसमें बहुत काम किया है, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार ने बरतानिया के पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी बराए मशरिक़ वस्ता, अफगानिस्तान और पाकिस्तान हमेश फाल्कनर से लंदन में मुलाकात की। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात के अलावा इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। रहनुमाओं ने सियासी, इक़्तिसादी और अवामी रवाबत को मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा किया। नायब वज़ीर आज़म ने इक़्तिसादी इस्लाहात के लिए पाकिस्तान के अज़्म को उजागर किया और जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के बारे में पाकिस्तान के नुक्ता नज़र का इजहार किया। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मुतल्लिका करारदादों के मुताबिक जम्मू कश्मीर तनाज़े के मुनसिफाना और पुरअमन हल की अहमियत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुस्बत ताल्लुकात को सराहा और बाहमी दिलचस्पी के शोबों में जारी ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार से मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा दातो सिरी उतामा हाजी मोहम्मद बिन हाजी हसन टेलीफोन किया, जिसमें उन्होंने सैलाब के बायस होने वाले अलमनाक जाने नुकसान पर ताज़ियत का इजहार किया। मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा ने मलेशिया की हुकूमत की जानिब से पाकिस्तानी अवाम के लिए इजहार यकजहती किया। नायब वज़ीर आज़म ने इजहार यकजहती पर मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने तरक्की पजीर ममालिक को दरपेश मौसमियाती तब्दीली के बढ़ते चैलेंज को उजागर किया।
नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार ने बरतानिया में पाकिस्तानी नियाद अरकान पार्लियामेंट मोहम्मद यासीन, ताहिर अली, इमरान हुसैन, अयूब खान और अदनान हुसैन से मुलाकात की। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार ने पाकिस्तान और बरतानिया के गहरे तारीखी और सकाफती ताल्लुकात को उजागर किया, जो बरतानिया में एक मुतहर्रिक और मौसर पाकिस्तानी निजात कम्यूनिटी की मौजूदगी से मज़ीद मुस्तहकम हुए हैं। नायब वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तानी कम्यूनिटी दोनों ममालिक के दरमियान एक पुल का किरदार अदा कर रही है। नायब वज़ीर आज़म ने जोर दिया कि पाकिस्तान दो तरफ़ा पार्लिमानी रवाबित को बेहद अहमियत देता है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी और मज़ालिम को उजागर करने में बरतानवी अरकान पार्लियामेंट के फ़ाल किरदार को भी सराहा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने 1,48,000 का संग मील अबूर करके नई तारीख रकम कर दी। आज मार्केट में जबरदस्त तेजी देखने में आई है और 100 इंडेक्स 704 पॉइंट्स के इजाफे के बाद तारीख में पहली मरतबा 1,48,196 पर बंद हुआ है। तफसील ज़मीर अब्बास से। मौजूदा हुकूमत मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए तिजारत के फरोग पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। पाकिस्तान के अमरीका समेत मुख्तलिफ ममालिक के साथ तिजारत के फरोग के लिए मुआहदे और बातचीत जारी है। अमरीका और सऊदी अरेबिया पाकिस्तान में तवानाई, सेहत और मादनियात के शोबे में सरमायाकारी करने में दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं। मुल्क की बेहतर होती मौशी सूरत-ए-हाल के पेश नजर आलमी रेटिंग एजेंसीज पाकिस्तान के क्रेडिट रेटिंग को मजीद बेहतर बना रही हैं। दूसरी जानिब मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर भी मुस्तहकम होते जा रहे हैं। यही वजह है कि आज स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान देखने में आया। आज दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 1900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा भी रिकॉर्ड हुआ, जिसके बाद मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,48,395 पर भी पहुंची। माहिरीन का कहना है कि हुकूमत की इन पॉलिसियों की वजह से सरमायाकार भरपूर एतमाद के साथ कैपिटल मार्केट में सरमायाकारी कर रहे हैं। ओवरऑल लग रहा है कि तेज़ी जो है बरकरार रहेगी, लेकिन मार्केट में करेक्शंस आ सकती हैं, लेकिन ओवरऑल पोजीशन बेहतर लग रही है। मार्केट में पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, लोग काम कर रहे हैं, साइड बोर्ड आइटम भी चल रहे हैं और ऑयल के स्टॉक्स भी चल रहे हैं, सीमेंट के स्टॉक्स भी चल रहे हैं। आज जैसे ऑयल के और सीमेंट के और जो है स्टील के स्टॉक्स भी परफॉर्म कर रहे हैं, तो लग रहा है कि आने वाले दिनों में चीज़ें बेहतर रहेंगी। वो इसका आपका क्रेडिट गवर्नमेंट को जाता है कि बेहतर पॉलिसीज़ हैं और जो ऑब्वियसली उन्होंने कहा है वो करके दिखाया है। आज स्टॉक मार्केट में मजमूई तौर पर 487 कंपनियों के शेयर का कारोबार हुआ, जिसमें 283 कंपनियों के शेयर की कीमतों में तेजी, 175 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कमी, जबकि 29 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। आज मार्केट में 39 अरब 17 करोड़ रुपए की लागत के 3,63,000 सौदे हुए, जिनमें 61 करोड़ से ज्यादा के शेयर का कारोबार हुआ। आज मार्केट में फर्टिलाइजर्स, कमर्शियल बैंक्स, ऑयल एंड गैस, सीमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, पावर जनरेशन, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल्स और टेक्सटाइल की कंपनियों के शेयर्स में तेजी देखी गई। ज़मीर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान को बढ़ती हुई आबादी और मौसमी तब्दीलियों से पैदा होने वाली पेचीदा सूरत हाल का सामना है, जिस पर काबू पाने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम करने की ज़रूरत है। कराची में कॉन्फ्रेंस से खिताब की तफसील बता रही हैं नौरीन आसिफ। वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासर हो रहा है। मौसमियाती तब्दीली के तनाजुर में निजी शोबे को हुकूमत का साथ देना होगा। उन्होंने कहा कि बेहतर मौशी पॉलिसियों की बदौलत पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आए रोज नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। I think this is a real time for all of us and all of you to step up. And I'm not just talking about rescue and relief. This is helping the private sector and the government to come up with investable, bankable projects which can help in terms of this adaptation finance. I'm just requesting your help because as part of this existential threat, there's no single segment, and certainly not just the government, which can deal with this as we go forward. Collectively now we are looking at about $3 to $3.5 billion of funding and financing which is available to deal with adaptation finance. कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए स्टेट बैंक के गवर्नर जमील अहमद ने कहा, पायदार इक्तिसादी तरक्की को सहारा देने के लिए पूरी तरह तश्कील शुदा और मुतनव्वे कैपिटल मार्केटों की जरूरत है। The aim of achieving deep and well-functioning capital markets should be to create a more liquid, better priced financial ecosystem that complements banks' traditional funding and lending rules. Such markets should be supported by a diversified investor base ranging from households and institutional investors to international participants that can provide sustainable financing for both the banking sector
and the wider economy. कॉन्फ्रेंस से सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन आकिफ सईद ने खिताब करते हुए कहा कि मुआशी इस्तेहकाम और कैपिटल मार्केट की मजबूती के लिए बैंक्स मालियाती निजाम के अहम शराकतदार हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ फरूख सब्जवारी ने खिताब करते हुए कहा कि हमारी कैपिटल मार्केट में बहुत सलाहियत मौजूद है जिससे इस्तेफादा करने की जरूरत है। बाद में वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब ने कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट फंड और आगाही पोर्टल का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। इत्तलात और नशरियात के बारे में कौमी असम्बली की कायमा कमेटी का इजलास चेयरमैन मुलीन बलोच की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें पाकिस्तान टेलीविजन कॉरपोरेशन और पैबरा से मुतालिक उमूर पर गौर हुआ। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कमेटी को बताया कि पीटीवी में इस्लाहात का अमल जारी है। पीटीवी इंग्लिश को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इदारे के वसाइल में इजाफे के लिए हिकमत अमली पर काम हो रहा है। पीटीवी होम को आउटसोर्स करने के अलावा 5 लाख से ज़ायद तनख्वाह पर 20% कट लगा दिया गया है। अताउल्लाह तारड़ ने कमेटी को एपीपी में माली बेज़ाब्तियों के मामले पर एफआईए की कार्रवाई से मुतालिक भी आगाह किया। वफाकी सेक्रेटरी इत्तलात और मैनेजिंग डायरेक्टर पीटीवी अमरीन जान ने इजलास को बताया कि बिजली के बिल में 35 रुपये फीस खत्म होने के बाद वज़ीर आज़म की हिदायत पर फाइनेंस डिवीजन ने पीटीवी के लिए सालाना 11 अरब रुपए मुख्तस करने की यकीन दहानी कराई है, जो सेमाही बुनियाद पर मिलेंगे। पैमरा हुकाम ने वेब टीवी चैनल्स और टीटी प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेशन के हवाले से इक़दामात से मुतालिक ब्रीफ किया। सेनेट ने मजमूई तौर पर 6 कानूनी बिल्स की मंजूरी दे दी, जबकि वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने वाज़ेह किया है कि 25 करोड़ आवाम के वोटों से मुंतखब पार्लियामान सुप्रीम इदारा है। कानून और आइन साजी सिर्फ पार्लियामान का इख्तियार है। आला अदलिया को पार्लियामान के एहतराम को यकीनी बनाना चाहिए। सेनेट इजलास की तफसील बताएंगे यासिर हुसैन। सेनेट इजलास चेयरमैन सैयद यूसुफ रजा गिलानी की सदारत में शुरू हुआ तो बाद इजलास की सदारत सदर नशीन में शामिल अक़लियती सेनेटर दनीश कुमार के सुपुर्द की गई। ऐवान ने इस इक़दाम का भरपूर खैर मकदम किया। यह पहला मौका था कि अक़लियती बरादरी से ताल्लुक रखने वाले बलोचिस्तान के सेनेटर दनीश कुमार ने सेनेट इजलास की कार्रवाई की सदारत की। लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से पार्लियामानी कायमा कमेटी की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना के इजरा के हवाले से सेनेटर सलीम मांडवी वाला के नुक्ता एतराज पर हुकूमती जवाब में वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने वाज़ेह किया कि 25 करोड़ अवाम के वोटों से मुंतखब पार्लियामान सुप्रीम इदारा है, जिसकी इज्जत व तौक़ीर के बगैर जमहूरी निज़ाम नहीं चल सकता। तो ये इख्तियार तो पार्लियामान का ही रहेगा कि मुल्क चलना किस तरह से है, उसका निज़ाम कौन सा होगा, उसमें आइन में कौन सी चीज़ें होंगी, कौन सी नहीं होंगी। इदारों के एहतराम में ही इज्जत है। इदारों का अगर एहतराम नहीं होगा तो सर निज़ाम नहीं चलेगा। और इस इदारे का एहतराम जो है ये इसलिए ज़्यादा फायक है कि 25 करोड़ अवाम ने ये इख्तियार आपको दिया है कि यहाँ बैठ के आप मुल्क की निज़ाम को चलाने के लिए जो वज़ा करेंगे वही फाइनल होगा। अपोजिशन के सेनेटर सईद अली जफर ने कहा कि आइन वाज़ेह है, अदालत आइनी मामलात पर तो कार्रवाई कर सकती है, ताहम पार्लियामान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं हो सकती। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान ने वाज़ेह किया कि पार्लियामेंट की कार्रवाई में अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती। इस मामले को मिलकर हल किया जाएगा। सिनफी बुनियादों पर तशद्दुद के वाक़यात में इजाफे से मुतालिक सेनेटर शेरी रहमान की तहरीक पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कि सिनफी बुनियाद पर किसी की जान लेने का किसी को भी हक नहीं। इस हवाले से कवानीन मौजूद हैं, ताहम तफ्तीश में नकाइस के बाइस ज्यादातर जिम्मेदार अनासिर सजा से बच जाते हैं। ऐवान में मजमूई तौर पर 6 कानूनी बिल्स मंजूर किए गए। इन बिल्स में पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी तरमीमी बिल 2023, पाकिस्तान कौंसिल बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी तरमीमी बिल 2023, फौजदारी कवानीन तरमीमी बिल 2024, हायर एजुकेशन कमीशन तरमीमी बिल 2024, पाकिस्तान बैतुल-माल तरमीमी बिल 2024 शामिल हैं। ये 5 बिल सेनेटर शहादत आवान ने पेश किए। सेनेटर फौजिया अरशद ने इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में बच्चों से मुशक्कत लेने की मुमानियत का बिल 2022 पेश किया, जिसकी ऐवान ने मुत्तफिका तौर पर मंजूरी दी। मुल्क खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा में हालिया सैलाब के दौरान NDMA की कारकर्दगी को जेर बहस लाने से मुताल्लिक सेनेटर मोहसन अजीज की तहरीक पर बहस में हिस्सा लेते हुए अरकान सेनेट ने कहा कि वफाकी हुकूमत कौमी सतह पर हंगामी हालत का ऐलान करे। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया सैलाब से बड़े नुकसानात की एक बड़ी वजह पहाड़ों से दरख्तों को बेदर्दी से काटना और दरिया के किनारे पर कसीरुल मंजिला इमारतों की तामीर है। खैबर पख्तूनख्वा में टिम्बर माफिया बहुत मजबूत और बाअसर है। अरकान सेनेट ने कहा कि हमें कुदरती आफात से मुअस्सर तौर पर निमटने के लिए कौमी सतह पर हिकमत अमली तय करने समेत अमली इक़दामात करने होंगे। बहस समेटते हुए वफाकी वजीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा, हुकूमत और पाक फौज दुश्वार गुजार इलाकों
گھروں میں امدادی کاموں میں مصروف ہیں۔ سینٹ اجلاس صبح 11 بجے تک ملتوی ہو گیا۔ کوئٹہ میں کلعدم بی ایل اے مجید بریگیڈ کے دہشت گرد مبینہ خودکش حملہ آور کو گرفتار کر لیا۔ کیا گرفتار دہشت گرد کوئٹہ کی بیوٹیمز یونیورسٹی میں گریڈ 18 میں پاکستان اسٹڈیز کا لیکچرر تھا۔ وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی کا کوئٹہ میں پریس کانفرنس میں کہنا تھا کہ والدین بچوں پر نظر رکھیں اور عوام گمراہ کن عناصر سے دور رہیں۔ تفصیل وقار احمد سے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کہتے ہیں حکومت دہشت گردوں کے آگے سرنڈر نہیں کرے گی۔ دہشت گرد اور دہشت گردی کا سہولت کار جو بھی ہوگا قانون کے کٹہرے میں ہوگا، سزا بھی ضرور ملے گی۔ کوئٹہ میں پریس کانفرنس سے کہنا تھا کلعدم بی ایل اے کے مجید بریگیڈ کے دہشت گرد کا پکڑا جانا سیکیورٹی فورسز کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ کلعدم بی ایل اے کے دہشت گرد خودکش حملہ آور یوم آزادی پر معصوم شہریوں کو نشانہ بنانا چاہتے تھے۔ گرفتار دہشت گرد کوئٹہ ریلوے اسٹیشن حملے کی سہولت کاری میں بھی ملوث تھا۔ We will not spare. We will fight this war in warfare and in lawfare too. دونوں جگہوں پر we will fight. This is our state. We will not surrender in front of these 2000 thugs جو ہمارا ملک توڑنا چاہتے ہیں whatever the cost is. یہ نہیں ہو سکتا کہ 2000 لوگ جو ہیں وہ 25 کروڑ کا ملک توڑ دیں۔ بلوچستان میں احساس محرومی محض پروپیگنڈا ہے۔ بلوچستان میں دہشت گردی کو پسماندگی اور غربت سے جوڑنا خود ایک سازش ہے۔ فوج شیڈول میں شامل 2 سے 2,500 سرکاری ملازمین کی اسکروٹنی بھی کی گئی ہے۔ بلوچستان کے اور پاکستان کے دشمن خواتین کو بھی اب بلیک میل کر کے دہشت گردی میں استعمال کر رہے ہیں۔ میں بار بار یہ وارن کر رہا ہوں کہ آئیے ہمیں انفارم کیجیے آپ کا بچہ چلا گیا، آپ کا بھتیجا چلا گیا کہ وہ کس تنظیم میں شامل ہوا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو پتہ بھی ہو، وہ معصوم لوگوں کی قتل و غارت بھی کرے، کیمپ سے چھٹی کر کے آپ کے گھر میں بھی آ کے رہے، اس کی بیوی بھی آپ کے ساتھ رہے، بچے بھی آپ اسکول پڑھاتے رہے اور آپ کہیں جی میں تو بے گناہ ہوں۔ یہ پھر بے گناہ تصور نہیں ہو سکتا ہے۔ میڈیا کے جواب دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی کا کہنا تھا لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا تو سیکیورٹی فورسز کے لیے بالکل مشکل نہیں، لیکن ریاست ذمہ دار ہے اور ہم ذمہ دار طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ بلوچستان کے حوالے سے ہمیشہ ابہام پیدا کیا جاتا ہے، ورنہ مالاکنڈ اور وزیرستان کی طرح آپریشن کوئی مشکل نہیں۔ ریاست نے سب کچھ دی ہے، عزت دی ہے، وقار دی ہے، نوکری دی ہے، اور خاندان کے اہلیہ کو دیکھیں اس کو بھی نوکری دی ہے، لیکن اس کے باوجود میں قانون کی خلاف ورزی کی اور ریاست کے ساتھ غداری کی ہے۔ پریس کانفرنس میں گرفتار دہشت گرد ڈاکٹر عثمان قاضی کا اعترافی بیان بھی میڈیا کے سامنے دکھایا گیا۔ وقار احمد، PTV نیوز، کوئٹہ۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں سول سوسائٹی کے ارکان نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ علاقے میں نو آبادیاتی منصوبے پر بھارت کا محاسبہ کرے۔ KMS کے مطابق سول سوسائٹی کے ارکان نے خبردار کیا کہ مودی حکومت 5 اگست 2019 سے کشمیری مسلمانوں کو سیاسی، آئینی، ثقافتی اور اقتصادی طور پر بے اختیار کرنے کے ایک سوچے سمجھے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری مسلمان BJP حکومت کی ہندتوا پالیسیز کا بنیادی ہدف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی کرتے ہوئے مقبوضہ علاقے میں زبردستی آبادی کا تناسب تبدیل کر رہا ہے۔ بھارتی فوجیوں نے ضلع بانڈی پورہ کے علاقے نوگاں میں محاصرے اور تلاشی کی ایک کارروائی کے دوران 2 کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار نوجوانوں کو تفتیشی مرکز منتقل کیا گیا اور ان کے خلاف کالے قانون کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ایک اور ظالمانہ اقدام میں قابض حکام نے پلوامہ کے علاقے ترال میں ایک سرکاری ملازم کو جھوٹے الزامات پر نوکری سے برطرف کر دیا۔ گاندربل میں ایک کم سن لڑکی کے بہیمانہ قتل کے خلاف لوگوں نے احتجاجی مظاہرے کیے۔ مظاہرین مقتول لڑکی کے لیے انصاف کا مطالبہ کر رہے تھے۔ مظاہرین نے قتل کی مذمت کرتے ہوئے اسے انسانیت کے خلاف جرم قرار دیا اور مجرموں کو عبرتناک سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ دوسری جانب واشنگٹن DC کے نیشنل پارک میں منعقدہ خالستان ریفرنڈم میں سکھوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ اور بھارت سے آئے ہوئے شرکاء نے بھارتی تسلط سے آزادی کا مطالبہ کیا اور مودی کے جابرانہ پالیسیز کی مذمت کی۔ 2021 سے شروع ہونے والے خالستان ریفرنڈم میں اب تک 8 ممالک میں منعقد ہو چکے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت قومی عدلیہ پالیسی ساز کمیٹی کا اجلاس سپریم کورٹ اسلام آباد میں ہوا۔ کمیٹی نے اہم پالیسی امور سمیت گزشتہ اجلاس کے فیصلوں پر عمل درآمد کا جائزہ لیا۔ کمیٹی نے ادارہ جاتی صلاحیت میں اضافے اور انصاف تک رسائی کے عمل کو تیز کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اجلاس کے دوران جبری گمشدگیوں کے مقدمات پر ادارہ جاتی رد عمل، عدلیہ کی آزادی کے تحفظ، کاروباری مقدمات کے فریم ورک میں بہتری لانے، مقدمات کے فیصلے کی مدت اور شام کی عدالتوں کے قیام، فوجداری عدلیہ سے منسلک مصالحتی نظام، ضلعی عدلیہ کی کارکردگی اور فلاح و بہبود، شکایات کے ازالے کے نظام، جیل اصلاحات اور قومی جیل پالیسی سے متعلق امور زیر بحث آئے۔ اجلاس میں تمام ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان اور اٹارنی جنرل سمیت دیگر شرکاء نے شرکت کی۔
वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि हुकूमत डिजिटल मईशत के फ़रोग़ के लिए कोशां है। हमारा हदफ पाकिस्तान को 2035 तक बड़ी मईशत बनाना है। इस्लामाबाद में उड़ान AI टेकाथॉन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वफाकी वज़ीर ने कहा कि उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम मुल्क की पायदार तरक्की का मंसूबा है। दुनिया आज पाकिस्तान की बेहतरीन सलाहियतों का एतराफ़ कर रही है। This is not just another competition. It is the spark we are lighting to ignite a nationwide movement. A movement to make Pakistan a hub of artificial intelligence innovation powered by our most valuable asset, our youth. Under the leadership of Prime Minister Shehbaz Sharif, Pakistan will not be a spectator in the AI revolution. We will be driver, we will be shapers, and we will be contributors to global AI economy. वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खित्ता पोठोहार, DG खान, कोह सलमान और शिमाल मशरकी बलूचिस्तान के मकामी बरसाती नदी नालों में तूग़यानी का ख़तरा है। शिमाल मशरकी पंजाब, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, नौशहरा और जनूब मशरकी सिंध के नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा है। शदीद बारिशों के बायस खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों, गिलगित बल्तिस्तान, मरी गलियात और कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग के बायस ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर होने का अंदेशा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, शिमाल, जनूब मशरकी बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी तौर पर अब्र-आलूद रहने के अलावा तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। इस दौरान खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, बालाई और जनूबी पंजाब और शिमाली बलूचिस्तान में कहीं कहीं शदीद और मूसलाधार बारिश का इम्कान है। खेलों की खबरों में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान की अशब इरफान ने जॉन्स क्रीक ओपन स्क्वाश टूर्नामेंट जीत लिया है। अमेरिका में होने वाले इवेंट के फाइनल में अशब इरफान ने मलेशिया के नेथन कैवे को शिकस्त दी। अशब इरफान ने नेथन कैवे को 40 मिनट के मुकाबले में 3-1 से हरा दिया। अशब ने पहली गेम 8-11 से हारने के बाद कमबैक किया और अगली 3 गेम्स 11-2, 11-2 और 11-6 से जीतकर एजाज हासिल किया। अशब इरफान का रवां साल का ये तीसरा PSA टाइटल है। बहुत शुक्रिया अनीस साहब का। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। हमें इजाज़त दीजिए, कुछ ही देर में आपको ज्वाइन करेंगे हेडलाइंस के साथ। आप हमारे साथ रहे, आपका शुक्रिया।